बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8434751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, चंद कॉलर्स हैं जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। पहले कॉल की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके के साथ शेयर करूँगा इस वीक की अपडेट्स। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, योर लाइव ऑन है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैं पीटरबरो तो बोलना भी अख्तर नाम आ रहा था तुसा ना एक गल करनी थी कोई केस ने बारी। जी जी करो गल मेरा भरा। जी जी। सर जी मैं सालन फिक्र किया पिछले साल अच्छा। मैं मिगी इत्थै होई है कोई 14-15 साल होई ਤੁਹਾਨੂੰ यूके रहंदियां 15 साल हो गए तकरीबन। जी। ठीक है जी जी। ते इस तरह कोई हल हो सी या कोई मतलब जे कोई तुसा कोल होई सकदा तां फिर चलो मैं उत्थै आवां। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है मेरा भरा? जी माड़ी उम्र जेह्ड़ी है ओह् 50 तो ऊपर है। ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? नहीं फिर लंबा इंटरव्यू को नहीं होया सिर्फ छोटा होया सी ते उसने च मिगी उन्हें 2 साल ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? जी नहीं दुआ जवाब उन्हें को नहीं दिता। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ? जी हेल्थ कंडीशन यही है मी डिप्रेशन ये मैं उन्हें की भी जड़ा मार्कुलू में सवाल जवाब किए थे ना जी जी। ते मैं उन्हें दस्या सी भाई मैं के जड़ा ना डिप्रेशन है। भाई मैं गोलियां डिप्रेशन है मैं गोलियां छुड़ियां खाना गोलियां भी उन्हें ਠੀਕ दित्तियां ਹੈ। सन। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? नहीं मैं तो उन्हें खाली इंटरव्यू हिंदा सी मैं उन्हें जान शान मैं आख्या सी भाई पाकिस्तान धमाके होने बाकी और कोई इतना खतरा खुतरा मैं कोई सी भाई भाई मैं कोई कत्ल ठीक करिए है। या कोई इस तरह ना। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 19,000 ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1,60,000 ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ NI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਲੇਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਤੋਂ 2,200 ਪਾਉਂਡ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
तय करना सी कि वो की चाहता है कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਾਈਲਮ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, जी फरमाइए। तो सर एक्चुअली पूछना ये था कि मुझे प्री सेटल स्टेटस मिला है एज ए ड्यूरेबल पार्टनर। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैं हॉलीडेज पे गया ना, वापस आया तो पासपोर्ट पे स्टैंप उन्होंने नहीं किया और सिर्फ वो कार्ड को उन्होंने स्कैन किया था। इसका कोई इशू होगा? और एक और सवाल है कि मेरी जो पार्टनर है उनको ऑलरेडी सेटल स्टेटस 2-3 साल पहले ही मिल चुका है। ठीक है। तो जब मुझे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना प्री सेटल स्टेटस का, तो उस टाइम मुझे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ठीक है, इस बारे में अगर प्लीज मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके। देखिए अक्सर क्लाइंट्स ये डर जाते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ उन्होंने कोई स्टैंप लगा दिए या उन्होंने कोई स्टैंप नहीं लगाई। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने आपके वीज़े को कैंसिल करना था या उनको कोई प्रॉब्लम थी, वो वहाँ ही आपसे पूछ लेते और वहाँ ही वो कैंसिल कर देते अगर वो करना चाहते। सो जहाँ तक बात है कि उन्होंने स्टैंप नहीं की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि आपकी जो पार्टनर है उसको तो सेटल स्टेटस मिल गया है, जब आप अप्लाई करेंगे सेटल स्टेटस के लिए आपको क्या साबित करना होगा? वही जो आपने पहले साबित किया था कि आप और आपकी पार्टनर एक ड्यूरेबल रिलेशनशिप में हैं और वो पिछले 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। अक्सर क्लाइंट्स को ये गलतफहमी होती है कि जब इनको स्टेटस मिलता है एज अ ड्यूरेबल पार्टनर, वो समझते हैं कि जिस टाइम से वो इकट्ठे रह रहे हैं उस टाइम से लेके अपने वो 5 साल काउंट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट नो। अगर आपकी शादी हुई है एक यूरोपियन नेशनल के साथ, फिर आप काउंट कर सकते हैं अपना टाइम जब से आपने शादी की थी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने शादी की थी 2018 में, वो स्टेटस आपको मिला है 2020 में, आपका जो 5 साल पीरियड है वो शुरू होता है 2018 से। पर जब आप अप्लाई करते हैं एज ए ड्यूरेबल पार्टनर, आपका जो 5 ईयर पीरियड है वो शुरू होता है जब आपको होम ऑफिस वीज़ा ग्रांट करती है। उससे पहले वो शुरू नहीं होता। सो दैट्स द मेन थिंग। सो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर कॉल। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतर हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं 2-3 सालों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल किया, थैंक बड़ी यू। मुश्किल से कॉल मिली है। तो बहरहाल आपका अच्छा मैं बहुत बड़ा ये फैन बात हूँ। बताएं, आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। इस पिछले 2 सालों में आपको इस शो में क्या अच्छा लगा कि आप देखते रहे? यार एक बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, आप जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कोई राइट लेफ्ट नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू। आपने लोगों के केस भी किए हैं, आपने वीडियो अपलोड भी की हुई थी। मैं इमिग्रेशन की ना आपकी देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और आपकी ये नेचर है कि आप घुमा फिरा के बात नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। थैंक यू। थैंक ये यू बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक अच्छा यू जी, सो मच। मेरा सवाल आपसे 2-3 सवाल है, ठीक है ना। जी जी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, अगर जहाँ से समझना है ना आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ट्राई करें। मैं 2012 में आया था स्टूडेंट वीजे पे, ठीक है। ठीक है। तो 1.5 साल का वीजा था मेरे पास, ठीक है। अच्छा, सिचुएशन ये थी कि 1.5 साल का वीजा खत्म हो गया था 2013 के नवंबर में, ठीक है। ठीक है। आसान लफ्जों में इलीगल, यानी कि खत्म हो ठीक गया। है, फिर मैंने ठीक है। 16 दिन के बाद एप्लीकेशन डाली कि मेरा यहाँ बच्चा है ब्रिटिश, मुझे यहाँ का स्टे दिया जाए, ठीक है। ठीक है। 2 महीने के बाद मुझे यहाँ का स्टे मिल गया था, ठीक है। अब 2012 से लेके 2022 के जून तक ना, मैं जब कंट्री में आया था, मेरे 10 साल बनते हैं। तो किसी ने कहा नहीं यार तुम ऐसे इंडेफिनिट रिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा 16 दिन का गैप है, कोई कहता है 28 दिन का ग्रेस पीरियड है। एनीवे शॉर्टकट ये है कि मेरा अब वीजा एक्सपायर हो रहा है 2.5 साल का अप्रैल में, ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं इंडेफिनिट डालूंगा, अगर मुझे इंडेफिनिट रिफ्यूज करते हैं, वो 16 दिन का गैप और कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे फिर वो 2.5 साल का वीजा तो लाजमी देंगे ना। अब जी 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 अब मेरी कोशिश है कि मुझे विंडो सर्विस भी मिल जाए, क्योंकि मुझे वीजा
सेम डे सर्विस पे चाहिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे काम की सिचुएशन ऐसी है कि अंडरस्टैंड। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, वो उसके बगैर कंप्रोमाइज नहीं करते, नंबर 1। नंबर नंबर 2, 1 मेरा या सवाल ये है कि विंडो सर्विस खुली हुई है, एक। नंबर 2, अगर मैं डेफिनेट जाते हैं, रिफ्यूज करते हैं, तो मुझे 2.5 साल का वीजा, ये तो नहीं कहेंगे जाओ कोर्ट में और केस करो, ये करो, वो करो, स्ट्रेट अवे दे देंगे 2.5 साल का? प्लान बी की बात कर रहा हूँ, अगर ए रिफ्यूज करते हैं। नंबर 2, अगर मुझे 2.5 साल का वीजा देते हैं, तो मुझे 1500 पाउंड NHS के पे करने पड़ेंगे, और या एक तो मुझे ये सवाल बता दीजिएगा, गैप 1500 का आएगा या 200-300 का गैप आएगा? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, दोबारा दोहराते हैं आपका जो क्वेश्चन था। 2012 में आप आए, 2013 नवंबर में आपका जो स्टूडेंट वीज़ा था वो एक्सपायर्ड हो गया। ओके जी जी। ओके, राइट, लिसन केयरफुली। 16 दिन के लिए आप हो गए ओवरस्टेयर, करेक्ट? जी जी। ठीक है, 16 दिन के लिए आप ओवरस्टेयर हो गए, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की फैमिली लाइफ की, करेक्ट? जी जी, बिल्कुल। ओके, सो 16 दिन आप ओवरस्टेयर हो गए, आपने फैमिली लाइफ की एप्लीकेशन सबमिट की, वो कितने टाइम पेंडिंग रही? 2 या 2.5 महीने। 2 या 2.5 महीने वो पेंडिंग रही। ओके जी, ये 2013 में मैंने डाली थी। 13 में डाली, और नवंबर में जब आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया, 16 दिन बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की, वो तकरीबन 2.5 महीने पेंडिंग रही, और 2.5 महीने बाद उन्होंने आपको बच्चे की बेस के ऊपर 2.5 साल का वीज़ा दे दिया, करेक्ट? पहले दिया मुझे 5 महीने का वीजा, क्योंकि मेरा कोर्ट में केस था बच्चे का, मेरा बच्चा ब्रिटिश था। तो पहले 5 महीने का वीजा दिया, विद इन 5 मंथ बिफोर, यानी कि चौथे महीने में डिसीजन आ गया था, कोर्ट ऑर्डर मुझे मिल गया था। तो फिर वही कोर्ट ऑर्डर मैंने होम ऑफिस में भेजा, तो उन्होंने मुझे 2.5 साल का लगा के दे दिया, यानी कि पहले 4 महीने का दिया या 5 महीने का, फिर 2.5 साल का। क्यों उन्होंने आपको 5 महीने का इसलिए दिया कि हमें वो एविडेंस भेजिएगा, जब आपको ऑर्डर मिल जाए हम आपको वीज़ा दे देंगे। जी एग्जैक्टली, जी आप समझ गए। ये और जो पहला वीज़ा 5 माह का उन्होंने दिया आपको, वो उन्होंने दिया आफ्टर 2.5 मंथ फ्रॉम नवंबर 2013, सो तकरीबन कह लें जनवरी 2014 में आपको 5 माह का वीज़ा मिल गया, करेक्ट? हाँ जी, वो 14 में मिला था मुझे, ऐसे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। और आपका जो अभी वीज़ा है 2.5 साल का, वो कब एक्सपायर हो रहा है? वो अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है, 14 अप्रैल को। अच्छा, और 14 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, विंडो सर्विस इंडेफिनेट की भी खुली हुई है और 2.5 साल की भी खुली हुई है, ये मुझे आप प्लीज बता दीजिएगा। मैंने लेनी विंडो सर्विस है, क्योंकि ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने ना आप, देखें मेरी बात सुने। जी जी। देखें, आज ना एक फुल कंसल्टेशन लाइव ऑन एयर करते हैं, जैसे अगर मैं करता, अगर आप मेरे दफ्तर आते, ठीक है ना? आई थिंक पहली दफ़ा ये हो रहा है हिस्ट्री में ऑन ए शो के फुल कंसल्टेशन हो रही है। लुक, अब आप अप्लाई तो कर सकते हैं, राइट, फॉर योर इन लॉन्ग रेजिडेंस, ठीक है ना? क्योंकि 16 दिन का जो गैप है, 28 डेज ग्रेस पीरियड था, आपने 16 दिन के अंदर कर दिया, 2.5 महीने पेंडिंग रहा। जो अगर हम अफजल का केस फॉलो करें, जो 2.5 महीने आपने जो गुजारे हैं 39E के ऊपर एज एन ओवरस्टेयर, वो आपने पूरे करने थे, वो आपने कर दिए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? जी जी। ओके, सो दैट मीन्स कि 2012 तो लेके 22 तक आपके 10 साल पूरे हो गए, राइट? जी जी। बट अगर हम ये भी देखें कि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है ना, कि वर्स्ट केस सिनारियो आपके 10 साल पूरे होते हैं इन जनवरी 2024 एनीवे। जी जी जी। सो आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस पर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपने मुझे बताया है वो दुरुस्त लग रहा है मुझे, कि आपके लीव में कोई ब्रेक नहीं हुआ। मैं आपसे ये तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है अप्लाई करने में, आप अपना सब्जेक्ट एक्सेस भी मंगवा सकते हैं, वहां भी चेक कर सकते हैं। अब जहां तक आपका उसी से मंगवा के बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और जहां तक आपका ये सवाल है कि जो विंडो सर्विस है, वो तो आप इस जी जी कर सकते हैं, विंडो सर्विस पर आपको ILR ग्रांट कर देंगे। अब लेट्स टॉक एक्सट्रीम्स, जो हमेशा मैं कहता हूं। फर्ज करें कि वो आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज कर देते हैं, जी जी। ओके, फिर वो आपको कहेंगे कि जो IHS फीस है वो आपको भरनी होगी, ओके, ठीक है ना? सो जो 1,560 पाउंड्स वो आपको भरनी होगी, और फिर वो आपको ग्रांट करेंगे 2.5 ईयर एक्सटेंशन। कामरान में ये बताएं, विंडो सर्विस लेने का टाइम सबसे बेस्ट टाइम क्या? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सुबह के, या डिपेंड करता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी आप सुबह उठते हैं, सुबह भी आपको मिल जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मिल जाएगी। बिल्कुल
उम्मीद है, थिंक पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। अगर ये मुझे बताएं इंडेफिनिट नहीं मिलती उसकी विंडो सर्विस, तो मैं फिर 2.5 साल पे डाल दूं, क्योंकि मुझे चाहिए विंडो सर्विस। मैं नहीं वेट मिलेगी नहीं कर आपको, सकता। देखें हमने किए हैं, लोगों को मिले हैं, आपको ज़रूर मिलेगी। अगर नहीं मिलती 2.5 साल का ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप अच्छा, करना चाहते हैं मुझे जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ये आपने मुझे बता दिया, जज़ाकल्लाह। मुझे एक चीज ये बताएं, आफ्टर इंडेफिनिट मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा? मुझे वीजा 10 साल बच्चे के बेस पे मिला हुआ है, प्लस 2017 में मैंने ब्रिटिश वाइफ से शादी की थी और उसमें से मेरे बच्चे भी हैं, तो लेकिन मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा आफ्टर किसके लिए? इंडेफिनिट? नहीं, ब्रिटिश अगर वाइफ आप के लिए। नहीं अगर आपके पास ब्रिटिश वाइफ है और आपको इंडेफिनिट मिल जाता है, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकेंगे फॉर योर ब्रिटिश नेशनलिटी। ठीक है मेरा भाई? लेकिन ये बताएं कि अगर वाइफ स्पॉन्सर करे तब कहते हैं वेट नहीं करना पड़ता। अगर मुझे तो वाइफ ने स्पॉन्सर नहीं किया, मुझे तो मेरी दूसरी शादी है ठीक है, बेसिकली। मैं वीजा देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर कम से कम आपको 3 साल हो गए हैं या आप अपने वाइफ के साथ रह रहे हैं, चाहे उसने आपको स्पॉन्सर किया है या नहीं किया, एंड यू आर लिविंग विद अ ब्रिटिश स्पाउस, यू कैन अप्लाई अंडर नेशनलिटी 62 और आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम साहब क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, जी फरमाइए। काम साहब से 2 सवाल हैं। वो जो है ना, एक जो बच्चे एडल्ट्स का आया है जो नया रूल 2 साल पहले, जी जी यंग एडल्ट्स के बारे में। जी जी मेरे बच्चे की उम्र 21 ईयर्स है, मोर देन हाफ लाइफ उसने यहाँ पे गुजार ली है और टीसी एक्सटेंशन भी हमारी हो चुकी हुई है। तो अब ये पता करना चाह रहा था कि इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो ये सवाल है। दूसरा, आपने बताया था लास्ट प्रोग्राम में कि नया कोई अपडेट आया है कि जो बच्चे पाकिस्तान से यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी। आई थिंक हमारी मुलाकात भी हुई थी ना दफ्तर में इस वीक। नहीं, मैं नहीं आपके पास। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया तो आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है कि आपका जो एक बेटा है वो ओवर 18 हो गया है, उसने हाफ लाइफ यहाँ गुजार ली है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे? मेनली कि वो यहाँ रह रहा है, उसने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि मैंने कहा था कि अगर आपका बच्चा पाकिस्तान या इंडिया में पैदा हुआ है और उसने 10 साल यहाँ यूके में गुजारे हैं और वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? बिल्कुल वो कर सकता है। 10 साल अगर बच्चे ने यहाँ गुजारे हों, इज़ अंडर 18, चाहे वो यूके में पैदा हुआ है, यूके से बाहर पैदा हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है नेशनलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। जी जी फरमाइए कामरान मेरे भाई, भाई। ये मैंने सवाल पूछना था जी जी कि मुझे इधर 7 साल हो गए हैं और 1 साल हो गया इंडेफिनेट मिले हुए, और मेरी वाइफ जो है वो काम कर रही है, मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा। तो मैंने अभी नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मेरा काम करना ज़रूरी शो करना, मैंने जो काम नहीं किया, तो क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, और कोई सवाल आपका? जी, और दूसरा ये पूछना है कि एक बच्ची इधर जो पैदा हुई थी मेरी, वो 5 साल उसको भी हो गए हैं, तो उसकी नेशनलिटी अप्लाई होगी या उसका क्या तरीकाकार है? नहीं, बच्ची जो आपकी यहाँ पैदा हुई थी, जी, आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है या उसके पास ILR है? नहीं क्या नहीं, स्टेटस? हम यूरोपियन थे, यूरोप से आए हुए हैं। ठीक है, अब यूरोप से आए हैं और अब हाँ, उसको यहाँ हो गया 5 साल, ठीक है ना? 5 साल, लेकिन जब वो पैदा हुई उस वक्त हमें साल हुआ था, इंडेफिनेट नहीं मिला था वाइफ को भी और किसी ठीक है, को भी। आई अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, सब पैदा यहाँ हुई है ना, राइट? जी, पैदा हुई है। जी ठीक तो है, उसका मैं देता हूँ तरीकाकार क्या है? आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जनरल रूल ऑफ थंब, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ कोई इनकम रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने साबित करना होता है कि आप यहाँ यूके में काम कर रहे थे नेशनलिटी हासिल करने के लिए। अगर आप स्पाउस वीज़े पर हैं, वहाँ तो एक रिक्वायरमेंट होती है 18,600, बट व्हेन यू अप्लाई फॉर नेशनलिटी देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट एज दैट। अब आपने मुझे ये बताया है कि आप हैं एक यूरोपियन नेशनल, 5 साल पहले आप यहाँ आए हैं, 5 साल आपने यहाँ पूरे कर लिए हैं और आपने काम नहीं किया, या आपको अफेक्ट करेगा या नहीं। नाउ, पहले था होम ऑफिस की जो गाइडेंस कहती थी कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं
और आपने चाहे आपने यहाँ इंडेफिनिट हासिल कर भी लिया है, अगर आपने टीटी राइट्स यहाँ नहीं एक्सरसाइज किए थे, वी कैन रिफ्यूज़ योर नेशनलिटी एप्लीकेशन। लेकिन चंद माह पहले होम ऑफिस ने इसको अमेंड कर दिया था ये रूल, और उन्होंने केस वर्कर्स को ये गाइडेंस दी है कि जहाँ किसी शख्स ने, यूरोपियन नेशनल ने काम नहीं किया, डिस्क्रेशन को इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी जो एप्लीकेशन है नेशनलिटी की उसको मंजूर कर देनी चाहिए। सो अगर आप अप्लाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी ब्रिटिश नेशनलिटी। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी जो बेटी यहाँ पैदा हुई थी वो 5 साल की हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको तो ILR मिल गया होगा, सेटल स्टेटस। अगर वाइफ को भी मिल गया है सेटल स्टेटस, आप दोनों को मिल गया है, फिर आप बेटी की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप किसी में एक को मिल गया है, फिर भी आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ UK में पैदा हुई थी। उसके लिए आपको सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पैदा हुई है। फौरी तौर पर आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और उसको भी होम ऑफिस रजिस्टर कर देगी एज अ ब्रिटिश नेशनल। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, मैं 2012 में आया था यहाँ पे UK में, और 3 साल पहले मैंने असाइलम क्लेम किया था। ओके, ठीक है। उनका अभी तक मुझे कोई मतलब कि इंटरव्यू का नहीं आया। फिर मैंने वर्क के लिए अप्लाई किया था, वो मुझे परमिट हो गया है। वो कब उन्होंने ग्रांट किया है? ये तकरीबन 2-1 महीने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और अब वो मांगते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। जी जी। तो मुझे जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल रही है। इसमें मेरा तजर्बा भी है 8-10 साल का। तो क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? दूसरा, मैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो सकता हूँ ट्रांसफर या नहीं? विजिट पे मैं आया था। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली नो, जो भी जॉब्स हैं अंडर द स्किल्ड ऑक्यूपेशन अपेंडिक्स, वही जॉब्स आप कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग वहाँ नहीं है, फिर आप कोई और जॉब नहीं कर सकते अगर आप चाहें भी। इट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपको वर्क परमिशन मिली हुई है, आप स्किल्ड वर्कर में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, जैसे मैंने लास्ट भी अर्ज़ किया था, वर्क परमिशन तो आपके पास है, लेकिन क्योंकि आपके पास लीव नहीं है, वैलिड लीव, आप स्किल्ड वर्कर में स्विच नहीं कर सकते। अगर आपके पास वैलिड लीव होती या आप एक ओवर स्टेयर होते और आप 14 डेज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते, फिर आप स्विच कर सकते थे। क्योंकि आपके पास लीव नहीं है, दैन अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट। अब 7 या 8 साल से आपका असाइलम क्लेम पेंडिंग है, ये तो बहुत ही लंबा टाइम है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सॉलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को लिखें कि 8 साल हो गए, आपने इस तरह मुझे लटकाया रखा है, इट्स अनफेयर, प्लीज़ मेरे असाइलम क्लेम को प्रोसेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह के मेरे भाई। जी फरमाइए। अच्छा, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो मेरा सवाल था कि अगर कोई ब्रिटिश है और वो हॉलैंड में गया है और उसने अपने वहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हैं, ठीक है, और उसने वहाँ पे अपनी फैमिली बुलाई है और फिर वो UK में आ गया है फैमिली को भी साथ लेके, ठीक है, तो उसने उस वक्त अपने डैड को नहीं बुलाया था, ठीक है, और अभी वो अगर डैड को बुलाना चाह रहा है UK में, तो क्या अभी भी वो उस लॉज के लिए, EU के लॉ के लिए बुला सकते हैं? एक, और दूसरा, वो अपनी वाइफ को भी अगर यहाँ पे बुला सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाया हुआ है, यानी मम को और सिस्टर ब्रदर्स को भी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट अगेन। हॉलैंड में वो गए थे, जो शख्स अभी अपने फादर को बुलवाना चाहते हैं और वाइफ को, उनका क्या स्टेटस है? वो तो ब्रिटिश है ना। वो ब्रिटिश हैं, ठीक है ना। सो वो एज अ ब्रिटिश नेशनल, आप ये पूछ रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं या नहीं? माँ को तो ऑलरेडी बुलाया होगा, सिर्फ डैड को नहीं बुलाया था उस टाइम ना। ठीक है, पहले पूरी फैमिली को। ठीक है। तो जो मदर थी वो सुरेंद्र सिंह के रूट पर चाह रहे उन्होंने थे। बुलवाया था उनको, या कैसे किया था?
हॉलैंड में बुलाया था ना EU लॉ के जरिए। ठीक है, अब जो फादर थे उनके, वो उनके साथ वहाँ हॉलैंड में रह रहे थे या नहीं? नहीं, वो पाकिस्तान में थे, अभी पाकिस्तान में वो थे, चाह ठीक रहे हो थे गया। और जो अभी उन्होंने शादी भी की है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं फैमिली को, तो वो ठीक अभी है, बुला सकते हैं वो EU ब्रिटिश लॉ के नेशनल जरिए आप ही UK हैं? में वाइफ को। जी वो ब्रिटिश नेशनल आप ही हैं या कोई और शख्स है? नहीं, वो खुद है ब्रिटिश शख्स। वो जो शख्स जिसकी हम बात करें वो आप हैं या कोई और बंदा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वो मेरा भाई है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके। देखें, जो सुरिंदर सिंह की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, बिफोर द ब्रेक्सिट डेडलाइन विच वाज 31 दिसंबर 2020, आप अपने स्पॉन्सर के साथ रह रहे थे इन द यूरोपियन कंट्री। सो क्योंकि आपके फादर उनके साथ नहीं रह रहे थे, आपके भाई के साथ, फिर अंडर सुरिंदर सिंह रूट वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। अब जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका कि जो आपके भाई हैं उन्होंने शादी अभी की है, वो अपनी वाइफ को बुला सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बुला सकते हैं, बट अंडर इमिग्रेशन रूल्स उनको साबित करना होगा कि वो 18,600 कमा रहे हैं। आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उनको इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा, ये भी साबित करना होगा इट्स अ जेन्युइन सबसिस्टिंग रिलेशनशिप, एंड अंडर इमिग्रेशन रूल्स वो आ सकेंगी यहाँ एज अ स्पाउस और पार्टनर। सो इमिग्रेशन रूल्स पर उनको अप्लाई करना होगा। अब जहाँ तक आपकी फादर की बात है, वो तो फिर एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आपके फादर अप्लाई करेंगे ILR के लिए। देखें, वहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे पास सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं, या तो मेरी वहाँ देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, या मैं जो प्राइवेट ट्रीटमेंट है या जो प्राइवेट केयर है मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इन दोनों में से एक आपके फादर ने साबित करना होगा। अगर होम ऑफिस मुतमिन हो जाती है आपको, आपके फादर को, वो ILR ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह के मेरे भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, मुझे एक दो सवाल पूछने थे आपसे। जी जी। तो पहला सवाल ये है कि मुझे 11 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। मेरे ठीक दो है। बच्चे हैं, एक पाकिस्तान में हुआ था, एक यहाँ हुआ। यहाँ हुआ था उसके 10 साल पूरे हुए, उसकी मैंने नेशनलिटी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब जो पाकिस्तान वाला है, जो अभी जब वो आया था बच्चा तो 3 साल का था, अब वो 15 का हो गया तकरीबन। तो वो मुझे आप बताएं, उनके लिए मैं नेशनली अप्लाई कर सकता हूँ जिससे आपने लास्ट टाइम बताया था? ठीक उसके है, मैं लिए देता हूँ। कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी मुझे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके एक कॉल का। जैसे मैंने लास्ट वीक अर्ज़ किया था कि अगर बच्चा बाहर से, UK से बाहर पैदा होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और उसने 10 साल यहाँ UK में लगातार गुजार लिए हैं, वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। बेस्ट चीज़ ये होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक सॉलिसिटर के पास जाके आप एडवाइस ले लें और फिर वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, इस वीक की चंद अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अक्सर सवाल मुझे पूछे जा रहे हैं कि ना असाइलम सीकर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ इस पर थोड़ी सी रहनुमाई डाल दें। और जैसे लास्ट वीक मैंने अर्ज़ किया था कि जो होम ऑफिस की जो बैकलॉग है वो अभी भी है 160,000, 1,60,000 लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने असाइलम एप्लीकेशंस को डिसाइड होने में। और लास्ट ईयर होम ऑफिस ने 19,000 एप्लीकेशंस पर डिसीजन किया था। अभी भी बैकलॉग है एट 160,000। लास्ट ईयर 90,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया था। सो अभी भी वो जो बैकलॉग है वो बढ़ती जा रही है, और होम ऑफिस ने एक नया प्रोसेस शुरू किया है जहां जो लोग अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन, एथेरिया से अप्लाई कर रहे हैं उनको एक फॉर्म भेजा जा रहा है कि जो वो भर के उन्होंने इंग्लिश में कंप्लीट करके भेजना है, और मोस्ट लाइकली उनको वो ग्रांट कर देंगे असाइलम। और इसको कहा जा रहा है कि ये किस्म की है एमनेस्टी फॉर असाइलम सीकर्स। अब जो न्यूज़ आ रही है प्राइवेटली वो ये है कि हो सकता है कि ये सब असाइलम सीकर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब ये इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी जाएं सॉलिसिटर के पास और फौरी तौर पर असाइलम का क्लेम डाल दें, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी। ये भी हो सकता है साल बाद वो कह दे कि नहीं, ये इन 5 ममालिक के लिए थी
कि जो यहाँ से आए हैं उनके लिए हमने ये स्कीम बनाई है 12,000 लोगों के लिए, और उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे रहे। जो दूसरे असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए हमने ज़्यादा केस वर्कर्स हायर कर लिए हैं और हम आपका केस बाय केस बेसिस पर असेस करेंगे। सो इट कुड बी दैट। सो अभी ये रूमर्स हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप देखते रहें कि क्या अपडेट्स आती हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। अच्छा, दूसरी जो अपडेट वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो थी इमिग्रेशन रेट्स के ऊपर और रिपोर्टिंग पर। होम ऑफिस ने अब दोबारा ये शुरू कर दिया है कि आपको बुला रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं क्लाइंट्स को, एप्लीकेंट्स को, लेटर्स भी आ रहे हैं जहां आपको बुलाया जा रहा है कि आप रिपोर्टिंग पर आएँ। नाउ क्लाइंट्स अक्सर डर रहे हैं कि यार इनको मेरा एड्रेस कहाँ से इनको मिल गया। एक सबसे आसान तरीक़ाकार इनके लिए होता है कि जो एड्रेस आप बैंक को देते हैं वहाँ से ये आपकी डिटेल्स ले लेते हैं और आपको फिर चिट्ठी लिखते हैं कि आप आएँ रिपोर्टिंग पर। अब अगर उन्होंने आपको बुलाया, आपको जाना चाहिए। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन सिस्टम में नहीं है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर एक सिस्टर के पास जाके एक एप्लीकेशन सबमिट कर दें जिसमें कम से कम मेरिट्स हों, एंड दैट एक्ट्स एज अ बैरियर फ्रॉम रिमूवल। कि अगर आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में होती है, जब तक वो डिसाइड नहीं होती आपको वो ये रिमूव नहीं कर सकते। इमिग्रेशन रेट्स भी इन्होंने शुरू कर दी हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, जो जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ भी लोगों को ये पकड़ रहे हैं। अगेन मेन थिंग इज़ अपने आप को महफूज रखने के लिए अगर आपकी कोई एप्लीकेशन सिस्टम में है, फिर होम ऑफिस आपको डिटेन नहीं कर सकती। इट एक्ट्स एज अ बैरियर। सो अगेन आप सब बहन भाइयों से जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं सबमिट की हुई, कम से कम एक सिस्टर के पास जाके ज़रूर एडवाइस ले लें। ओके, एन इम्पोर्टेंट केस, द केस ऑफ MAH, जहाँ एक इजिप्शियन नेशनल था, उसने असाइलम क्लेम किया और उसकी असाइलम कहानी ये क्या थी कि उसके फादर को इजिप्ट में, मिस्र में जेल में डाला गया और ये जाता था अपने फादर को मिलने के लिए जेल में। जब ये जाता था इसको डर आ गया कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो मुझे भी जेल में डाल देगी जिस तरह इन्होंने मेरे फादर को डाल दिया है। वो इजिप्ट से भाग के यहाँ UK आ गया और यहाँ इसने असाइलम क्लेम कर दी। होम ऑफिस ने तो इसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी और जब ये अपील पर गया वहाँ भी जज ने इसकी अपील को डिसमिस कर दिया और जज ने ये कहा अपने रिमार्क्स में कि ये हैरत की बात है कि तुम कोई प्रूफ नहीं साबित कर सके कि आपका जो फादर था उसको क्यों जेल में भेजा गया, क्या रीजंस थी। आपने कोई ये किस्म की एविडेंस नहीं पेश की और हम नहीं बिलीव करते कि आपका जो असाइलम क्लेम है ये क्रेडिबल है। सो अपील डिसमिस हो गया। जो माँ के जो सोलिसिटर्स थे उन्होंने अपील की तो कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील पर ये केस गया और कोर्ट ऑफ अपील ने ये डिसीजन को ओवरटर्न करके उस लड़के को असाइलम ग्रांट कर दिया है। और उनकी वजह ये थी कि देखें, जो असाइलम क्लेम में एज ए जनरल रूल ऑफ थंब जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो लो होता है। मतलब कि आपको कोई हाई लेवल थ्रेशोल्ड नहीं सेटिस्फाई करना होता कि आपको असाइलम दिया जाए। इट्स अ लो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। आपने मेन चीज़ ये साबित करनी होती है कि अगर आपको वापस भेजा जाएगा आपकी जान को खतरा है। दैट्स इट। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं साबित करनी होती या एविडेंस पाकिस्तान से, इंडिया से कि ये FIRs देखें, ये देखें, ये देखें। द मेन थिंग आपने साबित करना है, जज को मुतमिन करना होता है, होम ऑफिस को, जो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि आपकी जान को खतरा है। और जहाँ तक उन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात कही है कि अक्सर होता है ना कि आप असाइलम क्लेम करते हैं, होम ऑफिस या जज कहता है कि यार मैं नहीं मानता ये बंदा सच बोल रहा है। अगेन इन्होंने ये कहा है कि ये भी एक लो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। आप असाइलम सीकर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बहुत ही एविडेंस आपको पेश करे। इट्स अ लो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और आपने सारी कहानी को असेस करना है। और अगर आप एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, फ़र्ज़ करें एक बंदा कह रहा है कि नहीं मुझे मार देंगे पाकिस्तान में या इंडिया में, आपने रीजंस देने हैं अपने डिसीजन में, आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों नहीं तस्लीम करते, और फिर ही जज अपने फैसले पर आ सकता है। सो मेन चीज़ इस केस से आप ये ले सकते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो आपने देना होता है असाइलम क्लेम के लिए वो लो है। अगर आपके पास मजीद एविडेंस भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि जज आपका एप्लीकेशन फौरी तौर पर डिसमिस कर दे। सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर असाइलम सीकर्स। सो अगर आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं, अगर आपका केस डिसमिस हो गया, अगर आप अपील पर जा रहे हैं, अपने ग्राउंड्स में ज़रूर इस केस का हवाला दीजिएगा। लास्ट बिट ऑफ न्यूज़, मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर इस वीक, कि एक सेल्फ स्पॉन्सरशिप की वीडियो जा रही है
कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यहाँ कंपनी खोल लें 12 पाउंड दे के कंपनीज हाउस में, यहाँ किसी को ऑथराइजिंग ऑफिसर बना लें जो अपनी कंपनी को मैनेज करेगा, और अपने आप को स्पॉन्सर कर लें पाकिस्तान इंडिया से और यहाँ आके काम कर लें ऑन वर्क परमिट, और आपको 5 साल बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा। नाउ रिमेंबर समथिंग गाइस, इतना ये आसान नहीं होता, क्योंकि होम ऑफिस जो मेन चीज़ वो देख रही होती है कि जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक जेन्युइन वैकेंसी है। सो अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये जो वर्क परमिट आपने होम ऑफिस से लिया है, इसका सारा मकसद ये था, ये फैसिलिटेट करने को कि आप पाकिस्तान इंडिया से आना चाहते हैं और अपने आप को यहाँ स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। सो इट्स नॉट एज ईजी जिस तरह आपको ये वीडियोस में बताया जा रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों में ना आए, प्रॉपर एडवाइस लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, ये था इस वीक का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हम अगर कामरान भाई आपसे मिलना चाहते हैं, हम कैसे आपसे मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है कामरान एंड को सोलिसिटर्स, 139 क्रैम्बुक रोड, इल्फर्ड, एसेक्स, IG1 4PU। इल्फर्ड स्टेशन के बिल्कुल साथ 3 मिनट वॉक है, आप वहाँ मुझे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस है 0207, सो टेलीफोन नंबर 0207 183 8888। दोबारा दोहरा देता हूँ, 0207 183 8888। आप ऑनलाइन भी जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप लंदन में नहीं रहते, अगर आप बर्मिंघम, ग्लासगो, शेफील्ड, लीड्स में रहते हैं, go to www.kamranandcosolicitors.com, वहाँ जाएं, क्लिक ऑन बुक अ कंसल्टेशन, ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। वहाँ टाइम स्लॉट भी है आपके पास जो आप चुन सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप ईमेल के ज़रिए, बल्कि साइट पर आप मुझे सब कुछ भेज सकते हैं और मैं आपके साथ फिर फौरी तौर पर बातचीत भी कर सकता हूँ और आपका केस डिस्कस कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेके 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम।